Guys, welcome to Arihant Online Academy. In this video we will discuss about the CPU scheduling and the very first scheduling, that is first come first serve, with an practical example so that you can understand the concept very well. So let's start. So the basics of CPU scheduling is where to start, right? So from ready state CPU scheduling is started, right? So all processes when gathered in ready state, then the process of CPU scheduling started. Who started CPU scheduling? So short-term scheduler, as we have discussed in our previous lecture also, there are three types of schedulers: long-term scheduler, short-term scheduler and medium-term scheduler. So the work of short-term scheduler is to put one by one processes from ready state to run state, right? So this is the work of short-term scheduling. Now when scheduling is to be done, we can done scheduling either from run to terminate, means completion of the process, run to wait when we want to take input output operations to the processes, from run to ready, from wait to ready, or from new to ready. You can understand it very well from this, right? If your process is new beginning created, then your process is in ready, right? So you can create processes from ready to run. If IO operations are required by processes, then the process will be put into the wait and new processes will be put there. After completion of IO of the processes which are put or which are exist in the wait, we can also put again it into the ready state, and after certain time it will again go to the run. After successful completion it will go to the termination state. Okay, so this is the basic operations under the CPU scheduling. Now what are the goals of CPU scheduling? To minimize average waiting time, average response time and average turnaround time. This terminology which we have discussed in our previous lectures of process management, that various times are there: turnaround time, response time, waiting time, likewise that. So our main goal of CPU scheduling is that we have to reduce average waiting time of processes so that processes can execute faster and easily. Average response time also should be increased so that the processes should not have to wait or should not take it too long to respond. And average turnaround time should also be reduced so that the processes can execute fastly and systematically with efficiently, right? And the second goal is to maximize the CPU utilization and throughput of the system, so that if CPU utilization is full, then we can say that there is a true output of CPU scheduling, right? So basically two goals are there: to minimize average waiting time, average response time, average turnaround time of the processes, and to maximize CPU utilization and throughput of the system. Now let's start the first come first serve processes. The criteria of this is taken from arrival time. The process which arrive first will be scheduled first or execute first. This mode is non-preemptive. Non-preemptive means you do not have to disturb the processes which have come first until and unless this finished, right? So you will understand it better from the example. So let's take an example. So here we have given the process numbers. Process number 1, whose arrival time is 0 and whose burst time is 2. Burst time of process 1 2 means process 1 will take 2 seconds. Suppose we are taking it in second, right? Then process 1 will take 2 seconds to completion of this process. Process number 2, whose arrival time is 1 first second, on the 1 second second process is came, and burst time is 3 seconds, means process 2 will come at first second but it will take 3 seconds to execute completely. Process third had come at second but it will take 5 seconds to complete. Process 4 came at third second but it will take 6 seconds to complete, and similarly process 5th come at 4th second and it will take 4 seconds to complete, right? Now we will understand it practically so that you can get much and more clearly, right? Now we have to find average turnaround time and average waiting time. So how to solve it? Step 1, you have to make these 3 more columns or rows, whatever you have. If you are made this is right, then you have to add 3 more columns likewise that, so that you can solve it simultaneously with the processes came, right? So completion time of the processes, you have to add this column. Then average turnaround time is asked, so you have to make one separate table of turnaround time and you have to make one separate column of waiting time, right?
you have to note that. Now total processes are 5, so we have make a list of process 1, process 2, process 3, process 4 and process 5, right? Now we have to execute these 5 processes, but it will depend that which process will came first. The process which came first will execute first. जो process पहले आई है वो पहले execute होगी. Now सबसे पहले process आई है 0, क्योंकि इसका arrival time था 0, तो सबसे पहले process आई है 1. प्रोसेस नंबर 1 सबसे पहले आई है, क्यों? क्योंकि इसका अराइवल टाइम था 0 सेकेंड, मतलब ये 0 सेकेंड पे आई थी, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 2 सेकेंड लगे. इट टेक्स 2 सेकेंड टू एग्जीक्यूट. तो टोटल कंप्लीशन टाइम में इसको लगे 2 सेकेंड, मतलब आफ्टर 2 सेकेंड्स सिर्फ प्रोसेस फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, राइट? नाउ आफ्टर प्रोसेस 1 कंप्लीट्स 2 सेकेंड आपके हो चुके थे, लेकिन अब सेकेंड नंबर पे जो प्रोसेस आई है वो आई है फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस का टाइम था आने का फर्स्ट सेकेंड. सपोज अगर आप यहाँ देखें तो सबसे पहले प्रोसेस 1 आई है, फिर प्रोसेस 2 आई है क्योंकि इसका अराइवल टाइम 1 है, फिर प्रोसेस 3 आई क्योंकि इसका अराइवल टाइम 2 है, फिर प्रोसेस 4 आई क्योंकि इसका अराइवल टाइम 3, और फिर उसके बाद प्रोसेस 5 आई है क्योंकि इसका अराइवल टाइम 4 है. जैसा कि आप देख सकते हैं अराइवल टाइम जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में प्रोसेसेस भी दी हुई है, तो यहाँ कंफ्यूजन होने का कोई कारण नहीं है. नाउ प्रोसेस 2 3 सेकेंड्स लेगा कंप्लीट होने में. नाउ 2 सेकेंड ऑलरेडी हो चुके थे प्रोसेस 1 को कंप्लीट होने में. नाउ अगले 3 सेकेंड में प्रोसेस सेकेंड कंप्लीट होगी, तो टोटल हो गए हैं 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड के अंदर कंप्लीशन टाइम इसका होगा 5 सेकेंड प्रोसेस 2 का, कि 5 सेकेंड जब हुए तब प्रोसेस 2 भी कंप्लीट हो गई थी. नाउ प्रोसेस 3 अब स्टार्ट होगी जिसका कंप्लीशन टाइम है 5, मतलब ये बस टाइम इसका 5 है, मतलब अब अगले 5 सेकेंड तक प्रोसेस 3 एग्जीक्यूट होगी, राइट? तो टोटल इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया 10, मतलब 10 सेकेंड जब हुआ तब आपका प्रोसेस 1 हो गई थी, प्रोसेस 2 हो गई, प्रोसेस 3 हो गई. अब नेक्स्ट टाइम आएगी प्रोसेस 4 जिसका अराइवल टाइम 3, मतलब अराइवल टाइम यहाँ पर उसका कहीं 3 होगा, वो ऑलरेडी आ गई थी, लेकिन हमने यहाँ कहा ये नॉन प्रीएम्प्टिव मोड है, जब तक जो पहले आई हुई प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम नई ऐड नहीं कर सकते, राइट? तो अभी शुरू में 3 प्रोसेस आ गई थी, ये एग्जीक्यूट होगी. अब प्रोसेस नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी जिसको एग्जीक्यूट होने में 6 सेकेंड लगेंगे. तो अगली जब प्रोसेस 4 आई तो ये 10 सेकेंड से स्टार्ट हुई और 6 सेकेंड इसको एग्जीक्यूट होने में लगे, तो टोटल 16 सेकेंड इसका कंप्लीशन टाइम रहा. 16 सेकेंड जब हुए तब प्रोसेस 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो गए थे, राइट? सिमिलरली प्रोसेस 5 जब अब आएगी इसके बाद, तो वो 4 सेकेंड और लेगी एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि प्रोसेस 5 को 4 सेकेंड लगेंगे एग्जीक्यूट होने में, राइट? बस टाइम जो है वो टाइम है कि उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, राइट? सो आफ्टर 4 सेकेंड 16 के बाद 4 और मिला लेंगे आप तो 20 हो गए. तो इस 20 सेकेंड में आपकी प्रोसेस 5th भी कंप्लीट हो गई. नाउ हमारा जो मेन गोल ये है, टर्न अराउंड टाइम हमको एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है और एवरेज वेटिंग टाइम आपको फाइंड करना है, राइट? तो हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोसेस मैनेजमेंट में, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. जो कंप्लीशन टाइम है, अगर इसमें से आप अराइवल टाइम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा. तो प्रोसेस 1 जो है, ये है प्रोसेस 1, इसका टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ? कंप्लीशन टाइम है इसका 0 और अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम इसका 2 और अराइवल टाइम है 0. तो जब आप कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम घटाएंगे, मतलब 2 माइनस 0, तो आपको यहाँ मिला 2. तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया प्रोसेस 1 का 2 सेकेंड. एक और बार देखिए, टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. ये टर्मिनोलॉजीज और ये फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में, और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने वहाँ डिस्कस किए हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो उसमें डिस्कस किए हैं वो आपको सारे समझ में आ जाएंगे उससे, राइट? अब प्रोसेस सेकेंड का देखेंगे तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. इसका कंप्लीशन टाइम था 5 और अराइवल टाइम है 1, तो 5 माइनस 1 हो गया 4. सिमिलरली प्रोसेस 3 का अगर आप देखेंगे तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? कंप्लीशन टाइम 10 माइनस अराइवल टाइम 2, 10 माइनस 2 8. सिमिलरली प्रोसेस 4 का आप टर्न अराउंड टाइम देखेंगे तो 16 इसका कंप्लीशन टाइम है और इसका अराइवल टाइम है 3, तो 16 माइनस 3 हो गया 13. सिमिलरली प्रोसेस 5 का अगर आप देखेंगे टर्न अराउंड टाइम, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 20 माइनस 4, 16 आपको यहाँ मिल गया. तो ये आपको टोटल टर्न अराउंड टाइम मिल गया. ना आपसे क्वेश्चन में पूछा है एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए इन पांचों को आपको सम करना पड़ेगा. जब इन पांचों को आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा 43, और 43 को आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आपको मिलेगा 8.6. तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है. एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो पूछा गया था क्वेश्चन में वो है 8.6. तो आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है. एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया आपका 8.6, राइट? नाउ अब आपको सोल्व करना है वेटिंग टाइम. तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम जो है माइनस बर्स्ट टाइम. अब जैसा कि ये वाले फॉर्मूले हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों, तो आप
आपको अगर इस बारे में वो डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम का 3rd लेक्चर जिसमें हमने प्रोसेस मैनेजमेंट में ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो फर्स्ट प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना है, इसका टर्न अराउंड टाइम है 2 माइनस बर्स्ट टाइम 2 माइनस 2 0, मतलब इसका वेटिंग टाइम 0 है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि जब हमारी पास 0 सेकंड था, कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो सीधे प्रोसेस 1 आ गई, मतलब प्रोसेस 1 को कोई वेट नहीं करना पड़ा, प्रोसेस 1 को कुछ भी वेट ना करना पड़ा, तो इसका प्रोसेस टाइम हो गया 0, राइट। सिमिलरली प्रोसेस 2 को अगर देखेंगे तो प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम होगा टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। इसका टर्न अराउंड टाइम है 4 और इसका बर्स्ट टाइम है 3। 4 माइनस 3 1, मतलब इसको 1 सेकेंड वेट करना पड़ा। आप देख भी सकते हैं प्रोसेस 2 कब आई थी, फर्स्ट सेकेंड पे आई थी, लेकिन ये स्टार्ट कब हुई, सेकेंड पे, मतलब इसको 1 सेकेंड वेट करना पड़ा। 1 सेकेंड पे आ गई थी ये, लेकिन 2 सेकेंड पे स्टार्ट हुई है प्रोसेस 2, मतलब टोटल इसको 1 सेकेंड वेट करना पड़ा। तो ये सही बात है कि फर्स्ट सेकेंड इसको वेट करना पड़ा। सिमिलरली आप प्रोसेस 3rd को अगर देखेंगे तो इसका वेटिंग टाइम है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 8 माइनस 3 हो गया 5, 8 माइनस 5 हो गया 3, 8 माइनस 5 इसका बर्स्ट टाइम है, राइट, और 8 इसका टर्न अराउंड टाइम। 8 माइनस 5 हो गया 3, मतलब प्रोसेस 3 को आपको 3 सेकेंड वेट करना पड़ा। आइए देखते हैं कैसे। इसका अराइवल टाइम क्या था प्रोसेस 3 का 2, लेकिन प्रोसेस 3 आपकी स्टार्ट कब हुई, 5वें सेकंड पे जाके प्रोसेस 3 आपकी स्टार्ट हुई, लेकिन वो आ कब गई थी एग्जीक्यूशन में, ऑलरेडी वो रेडी स्टेट में सेकंड पर ही आ गई थी, राइट, लेकिन उसको 5वें सेकंड पे रन स्टेट में जाने में लगा, मतलब 5 माइनस 2 3, इसको 3 सेकंड वेटिंग करना पड़ा, राइट। सिमिलरली 4th अगर आप देखेंगे तो इसका टर्न अराउंड टाइम है 13 और इसका बर्स्ट टाइम है 6, मतलब इसको 13 माइनस 6 वेटिंग टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, राइट। तो 13 माइनस 6 होता है 7 सेकेंड इसको वेट करना पड़ा, मतलब प्रोसेस 4 3rd सेकेंड में अराइव आ गई थी, मतलब जो रेडी स्टेट था उसमें 3रे सेकेंड में ये प्रोसेस आ चुकी थी, लेकिन प्रोसेस 4 स्टार्ट कब हुई, प्रोसेस स्टार्ट हुई 10वें सेकेंड पर, तो 10 माइनस 3 7 सेकेंड इस प्रोसेस 4 को वेट करना पड़ा एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट, मतलब स्टार्ट होने के लिए। उसके बाद प्रोसेस 5th को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो प्रोसेस 5th जो है 4th सेकेंड में आ गई थी, इसका टर्न अराउंड टाइम क्या था 16, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करेंगे तो 16 माइनस 4, तो आगे आ गया 12, इसको 12 सेकेंड वेट करना पड़ा, मतलब 16 माइनस 4 कितना होता है 12, 12 सेकेंड इसको वेट करना पड़ा। कैसे, ये 4th सेकेंड में ऑलरेडी आ चुकी थी हमारे पास रेडी स्टेट में, लेकिन इसको एग्जीक्यूट, मतलब जब ये स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूट होना, तो इसको 16वें सेकेंड में जाके रिस्पॉन्स मिला कि अब आप एग्जीक्यूट हो सकते हो, तो 16 माइनस 4 हो गया 12, मतलब इसको 12 सेकेंड वेट करना पड़ा एग्जीक्यूट करने के लिए। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है एवरेज वेटिंग टाइम क्या, एवरेज वेटिंग टाइम का सिमिलरली इन सबको आप सम करिए और उसके बाद डिवाइड कीजिए 5 से। तो इन जब आप सबको सम किया हमने तो 23 है, उसको 5 से डिवाइड किया तो 4.6, तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम भी आ गया 4.6। अब हमसे 2 क्वेश्चन पूछे थे इसमें, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है वो हमने निकाल लिया 8.6 और एवरेज वेटिंग टाइम क्या है वो भी हमने निकाल लिया 4.6। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग जो होती है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये गेट का ही क्वेश्चन है, गेट नेट, और कोई भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, केवीएस, पीजीटी, आईबीपीएस, आईएसओ, आईटी ऑफिसर, या कोई भी आप कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें ओएस पूछा जाता है, एमडॉक्स हो गई जैसे कि, या फिर किसी भी आईटी पर्पस के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हुआ क्या है। तो दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके क्या है वो नोट कर लीजिए आप। इफ अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेसेस आर मैचिंग देन शेड्यूल द प्रोसेस विच हैव लोवेस्ट प्रोसेस आईडी। जैसा कि यहाँ पे अराइवल टाइम सबका अलग अलग था, लेकिन सपोज प्रोसेस 4 यहाँ पर होती वो भी 1 सेकेंड पे आई है, तो आपको सेकेंड प्रोसेस पहले करनी है, वो करनी है एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोसेस आईडी, मतलब ये जो प्रोसेस नंबर है वो जिसका लोवेस्ट है उसको आप पहले एग्जीक्यूट कीजिए। सपोज इसका अराइवल टाइम भी 0 है तो आप सबसे पहले इस 1 को कीजिए एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोसेस आईडी कम है। मतलब अगर अराइवल टाइम किसी भी 2 प्रोसेसेस का या 3 प्रोसेसेस का सपोज सेम है या सबका अराइवल टाइम 0000 है, तो सबसे पहले आप प्रोसेस नंबर 1 को, फिर 2, मतलब जिसकी प्रोसेस आईडी छोटी है उसको आप पहले एग्जीक्यूट कीजिए। ये इसके कहने का मतलब है, राइट। ना कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है? तो दोस्तों कॉन्वॉय इफेक्ट काफी बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंतर्गत। In the first come first serve FCFS, मतलब first come first serve, if the CPU bound processes is followed by many input output bound processes, जो CPU bound processes है इतनी सारी, ये सारी input output bound processes, then it will have major effect on average waiting time of the processes. तो this effect is known as convoy effect। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लास्ट में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है यहाँ पर, उसके अराइवल टाइम अगर जल्दी आ जाता है तो काफी ज्यादा टाइम उसको वेट करना पड़ता है, राइट। तो इस इफेक्ट को क्या कहा गया है?
कॉन्वॉय इफेक्ट, क्योंकि वो जब तक आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक वो आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रहा है, मतलब पहले बार जो आ चुकी, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं, सपोज 0 पे आई और इसका बस्ट टाइम होता है सपोज एग्जीक्यूट करने का 15 सेकंड, तो शुरू के 15 सेकंड तो आपकी प्रोसेस 1 ही एग्जीक्यूट होगी, भले ये 1 सेकंड पे आ गई और इसको एग्जीक्यूट करने में 3 सेकंड ही लगेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रोसेस को 15 सेकंड अगर लग रहे हैं, मतलब क्योंकि वो पहले आ चुकी है तो उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। तो ये जो इफेक्ट है जिसमें बाकी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम बढ़ता जाता है, इस इफेक्ट को कॉन्वॉय इफेक्ट कहा गया है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो दोस्तों हम अगला जो टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें इसी तरीके से हम और अच्छे से समझा सकें, आपकी क्वेरीज सॉल्व कर सकें, डाउट सॉल्व कर सकें और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आप तक पूरी तरह पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।